Next is commercial unit of power. Commercial unit of power. Commercial unit of power is 1 kilowatt hour. 1 kilowatt hour. You have studied this concept in 9th standard as well as in 10th standard. In 9th standard, you have studied this topic in chapter work done, and in 10th standard in chapter electricity. Okay, so commercial unit of power is 1 kilowatt hour. You know, formula of power is equal to work done over time, and work done is equal to power multiply time. So this is the commercial unit of energy. Commercial unit of energy is 1 kilowatt hour. Okay, power is equal to work done over time, and work done is equal to power multiply time. You know, now work done is equal to the amount of energy supplied to the body. This is equal to energy power multiply time. So to calculate energy in terms of kilowatt hour, take power into kilowatt and time into hour. Okay, ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਲਬ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2000। ਮੈਂ ਏਸੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਏਸੀ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ 2000 ਵਾਟ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ 8 ਆਰ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੇਗਾ ਜੇ 8 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 8 ਆਵਰਸ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕੋਲੀਜ਼ਨਸ। ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਇਜ਼, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਹ ਬੋਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਬੋਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਸਿੰਪਲ ਆ, ਦ ਟਰਮ collision refers to the interaction between two bodies or particles due to which the direction and magnitude of the velocity of the colliding bodies change. Okay, ठीक है सर। डायरेक्शन ਤੇ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज मीनस, देखो ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਤਾ, ਇਟ ਰੈਫਰਸ ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਬੋਡੀਜ਼ ਔਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਡਿਊ ਟੂ ਵਿਚ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਦ ਕੋਲਾਈਡਿੰਗ ਬੋਡੀਜ਼ ਚੇਂਜ। ਸੋ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਕੋਲੀਜ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ colliding particles are neglected, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आप टाइप्स ऑफ कोलिजन। टाइप्स ऑफ कोलिजन, फर्स्ट हैगी है जी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, inelastic collision, and
perfectly inelastic collision. ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज इन्होंने वन बाय वन लिखते हैं आप. फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. ठीक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की हैगी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ and kinetic energy of the system remains constant. So it means kinetic energy and linear momentum before collision is equal to kinetic energy and linear momentum after collision. ठीक स्टूडेंट्स, मतलब कि kinetic energy भी collision तो पहला ते बाद after collision सेम रहती, कॉन्सटेंट रहती है इलास्टिक कोलिजन दे विच, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. तो लीनियर मोमेंटम भी की रहिंदा, कंजर्व रहिंदा. ठीक है, ये एग्जाम्पल जिवें लै सकते हैं, पर ये एग्जाम्पल ना परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बड़ी रेयर आ. ठीक है, मतलब जे असीं कहिए कि इत्थे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लै सकते हैं, वैसे एग्जाम्पल लै सकते हैं, बट वो 100% करैक्ट नहीं हैगी. ठीक है, क्यों नहीं करैक्ट हैगी? देखो, जिवें बॉल आ, ਉਹਨੂੰ नीचे सुटदा, ठीक है, फॉल करवाना सरफेस नाल. तुसीं देखना कि जिवें सपोज मैं इन्नी हाइट तो बॉल सुट्टी, वापस तुसीं देखना भी इन्नी हाइट ते आउंदी, फिर जो इन्नी हाइट ते रीबाउंड होकर फिर वापस आ गई सेम हाइट ते. इट मीनस ਉਹਦੀ काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हुई. बट इदा ਹੁੰਦਾ ही नहीं, लॉस ਹੁੰਦੀ है. बट वो जे ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ एग्जाम्पल लिख ਦਿੰਦੇ ਆ, क्योंकि ਅਸੀਂ एक्सटर्नल फोर्सिस ਨੂੰ निगलैक्ट कर ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ठीक है जी, नैक्सट है जी, फिर एग्जाम्पल लिख लेना. ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टन हाइट विल रीबाउंड टू द सेम हाइट if it has elastic collision with the striking surface. Okay, this is because in elastic collision there is no loss of kinetic energy. Next is inelastic collisions. Okay, a collision is said to be inelastic if the linear momentum of the system remains conserved but its kinetic energy is not conserved. सो इनइलास्टिक कोलिजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੀਨੀਅਰ मोमेंटम कंजर्व रहेगा बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी. कंजर्व मीनस बिफोर कोलिजन तो आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम सेम रहेगा, एंड बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी, कुछ लॉस हो जाएगी. हम देखो एक विंडो आ, ठीक है, विंडो पैन आ, गिलास आ, ठीक है, उन्होंने तुम स्टोन मारते जी, स्टोन स्ट्राइक कोलिजन करवाते जी स्टोन की गिलास के नाल. गिलास मतलब शीशा जिन्होंने कह दो तुम, गिलास ट्रांसपेरेंट, उन्होंने मार तुम स्टोन स्ट्राइक करवाते जिन्होंने कोलिजन करवा देंगे कि वो वापस रीबाउंड होकर वापस आता नहीं आता. काइनेटिक एनर्जी की लॉस्ट हो जाती है, घट जाती काइनेटिक एनर्जी जो कोलिजन होती है, काइनेटिक एनर्जी घट जाती स्टोन की. किहड़ी कोलिजन होएगी, इनइलास्टिक कोलिजन.
ठीक है। इनइलास्टिक कोलिजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬॉल ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ फ्री फॉल करवाई हाइट तो ड्रॉप की है वो सेम हाइट तो रीबाउंड होकर वापस नहीं आएगी। ठीक है, की हो जाएगी ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ इनइलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। सो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन किहड़ी होएगी? A collision is said to be perfectly inelastic if the two bodies after collision stick together and move as one body। इस केस फेयर क्यों होएगा? लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स इन्हों आप किवें समझ सकते हैं? देखो, एक अपने को स्टेशनरी ब्लॉक आ, ये वुडन ब्लॉक आ, की है ये वुडन ब्लॉक आ, यह बुलेट आ, बुलेट फायर की ये आप हूँ क्या होगा जो बुलेट ये अंदर जाएगी, कोलिजन होएगी है ना, की होएगी? ये ब्लॉक भी बुलेट के नाल मूव करना शुरू कर देगा, दोवें स्टिक कर जाएंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। सो ये ताड़ी की होएगी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ये की होएगा जो बॉडीज कोलाइड कर दी, एक दूजे ने स्टिक कर जाएंगे, एक दूजे जुड़ जाएंगे तो इकट्ठियां मूव करन लग पैणगियां। ठीक है। सो जी एग्जाम्पल है, मैंने मूविंग बुलेट हिट्स द स्टेशनरी वुडन ब्लॉक दैन इट एम्बेडेड इनटू द वुडन ब्लॉक एंड बोथ मूव एज वन बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, सो तुसीं ना एक टेबल बना लेना। टेबल किवें? जिवें इत्थे लिख लेना वा नेम ऑफ कोलिजन, ये हुण तुहाडा काम। इत्थे लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, कोलिजन की टाइप लिख के लिख लेना किहड़ा कंजर्व किहड़ा नहीं कंजर्व है। ठीक है जी। सो ये मैं अगे फर्दर 2 आर्टिकल रह गए ने, तुहाडे 1-2 लैक्चर का काम रह गया होर, तो तुहाडा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना। इस तो बाद एक यूनिट रह जाएगा तुहाडे सिलेबस का, फर्स्ट टर्म का सिलेबस, तो फिर आप प्रैक्टिकल नाल करके तुहाडा सिलेबस प्रोबेबली जुलाई मंथ के कंप्लीट हो जाएगा। जुलाई अगस्त तक आप कंप्लीट कर लाँगे फर्स्ट टर्म। ठीक है, रिवीजन भी कर लाँगे। सो रिटन करना। सो जो भी तुहाडे डाउट्स होणगे आप रिवीजन करांगे, चैप्टर वाइज रिवीजन करांगे। फर्स्ट टर्म दिन चंगी तरह रिवाइज करके फिर ही फर्दर प्रोसीड करांगे। ठीक है, उस तो बिना नहीं है चलांगे। कोई डाउट होएगा तुहाडा तुसीं ग्रुप दे विच अपना मैसेज छड्ड सकदे जी। ठीक है, मैसेज लीव कर दिया करो। तुहाडे स्टूडेंट्स का एक भी सिंगल मैसेज नहीं आया जिहदे विच किसी नूं डाउट होवे। ठीक है, सारे कहंदे जी असीं सानूं सारे क्वेश्चन आउंदे आ। ठीक है, इदां तो हो नहीं सकता कि सारी तुहानूं समझ आ गई हो, तुसीं फर्स्ट टाइम कोई टॉपिक पढ़िया होवे तो तुहानूं फर्स्ट टाइम ही सारा कुछ समझ लग गया होवे। इदां नहीं हो सकता, इंपॉसीबल। ठीक है। सो कुछ बच्चे हैगे ने वो एक दूजे तो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूजे की PDF फाइल जी वो सेंड कर देंगे ने, जां टैसट तुसीं जो मैं PT टैसट लिया है मैं उतो सैटिस्फाइड नहीं है क्योंकि तुसीं उन्होंने कॉपी किया नैट तो। ठीक है, वो ईजली दिख जाता क्योंकि साडा भी इन्ना एक्सपीरियंस है कि सानूं पता लग जाता किहड़े बच्चे ने आप किया, किन्ने कॉपी किया नैट तो। सो इहो जी कोशिश ना करो नैक्सट टाइम, क्योंकि सानूं पता लग जाता। ठीक है, फिर असीं तुहाडे नेम नोट डाउन कर लेने आ। ठीक है, फिर कोई एक्शन स्ट्रिक्ट होएगा वो वास्ते असीं रिस्पोंसिबल नहीं होवांगे। ठीक है, सो ऑनेस्टी नाल अपना काम करो। ठीक है, तुसीं स्टडी करना है तुहाडे फायदे वास्ते है, ये मेरा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैनूं मेरी सैलरी मिल रही है, पर तुसीं मैक्सिमम जिन्ना बेनीफिट लै सकते हो लो। ठीक है, ये तुहाडे ते डिपेंड है क्योंकि हम तुहानूं घरे आके तो पढ़ा नहीं सकते। हुणे ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, सिचुएशन सारिਆਂ ਲਈ सेम आ। सो तुसीं जिन्ना साडे कोल तुसीं
ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੌਲੇਜ, ਉਨੀ ਤਾਂ ਕਰੋ ਐਟਲੀਸਟ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।